On one side, we are saying that the level and standard of education is improving, and on the other side, we are saying that gratitude is a virtue that is dying. Education system is completely and only designed to achieve material gain and material success. The value education do not find time. If you go for a tangible thing, it's generally associated with reward. So where does a person draw a line between a reward and gratitude? Reward you are being given even when you are number one in your university. But for that reward, you must find who has all helped me in getting that reward. And expressing your sense of gratitude to those people is what gratitude is. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaskar. We are going to discuss today a subject which I think our Indian culture has imbibed in its everyday life, but somewhere we have left it and we are not practicing that with our own near and dear people. And what is that? The gratitude. आज मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज हम चर्चा करेंगे कि अपने नियर डियर और किसी का भी धन्यवाद देना, एहसानमंद होना, या अंग्रेज़ी में कहें तो ग्रैटिट्यूड प्रकट करना, क्योंकि हम नहीं करते हैं अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, उनको कभी थैंक यू नहीं कहते हैं। बल्कि यहाँ तक कि हमारे कल्चर में अभी तो ये हो गया है कि अगर आप मेरे क्लोज़ हो और मैं आपके लिए कुछ करता हूँ और आप अगर थैंक यू कहते हो मुझे, तो शायद मुझे बुरा लगता है। लेकिन क्या ये सही है, गलत है? आज इस बात पर चर्चा करेंगे। What do you think is the meaning of gratitude? अगर हम अपने आप ज़रा देखें अपने आप को, इस विषय में थोड़ा सोचें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम ज़िंदगी में हमारा दिन किसी न किसी कंप्लेंट से शुरू होता है। कंप्लेंट किस किस्म की हो, ये हर एक आदमी के अपने ऊपर निर्भर करता है। किसी दिन आप अगर देर से सोए हों, रात को पार्टी वार्टी पब में ज़्यादा लंबा टाइम गुजारा हो, और सुबह क्योंकि उठना है, क्लास में पहुंचना है, एंड योर फैकल्टी पर्सन हु इज़ टेकिंग द क्लास इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, then you don't want to get up in the morning, but you say, oh my God, why I have to do this? That is how I start my day, complaining about something. When something bad happens to us, something wrong happens to us, generally what do? We find somebody else to be blamed for. So two things. One is we find somebody else to be a scapegoat, or if we are honest to ourselves, then we say कि हाँ यार गलती हो गया, we accept it. But regretting is wrong again. I would advise don't regret. Accept that yes, मेरे से गलती हुआ, इसकी वजह से it didn't work out, I didn't succeed. Let's move on. I'll improve. Regret करना गलती हो जाएगी. If you don't find somebody else, then that God is always there to blame. That's good. That's what I was waiting for. God is always there to be blamed, or even to give credit also. When we don't find anything, then we find God. कोई आदमी एक्सीडेंट से मर गया रोड पे, भगवान का ऐसा ही मर्जी था। ये नहीं देखते कि अरे वो गलती से ठीक से रोड क्रॉस नहीं कर रहा था। Does it lead us anywhere? The regret or finding somebody else as a scapegoat, it doesn't help us. And then what is the human nature? What we do next? We usually do the same mistake again and don't learn from them. We don't. We continue to do that. Next, when we move, we have lost that what expression of gratitude can do to you and to your environment around. It can make life much, much more beautiful, much more meaningful. And let's discuss how. We had the culture in this country from decades. Whenever you will do any good thing, you will enter into new house, you will enter into new class, you will go to the next standard. घर से निकलते हो examination के लिए,
तो माँ क्या करती है? दही खा के जाओ बेटा। मुझे याद है पिछले दिनों वेरी सक्सेसफुल बैंड इन मुंबई, दे मेड बिग टू द चार्ट्स, वेरी हिप हॉप पॉप कल्चर। मदर ने ज़बरदस्ती प्रेशर किया कि नो, दही खा के जाना। क्या यार, माँ तो पता नहीं बड़े पुराने विचार किए, दही खाऊंगा, ज़ुकाम पहले हुआ है, क्या करेंगे। चलो, पर ट्रेडिशन है, माँ ने कहा तो खा के गया। वेरी सक्सेसफुल शो। देन दे टॉक अमंग्स देमसेल्व्स, यार कुछ भी मानो, हमारा ट्रेडिशन में दम तो है। आप कुछ भी पूजा शुरू करते हैं, पूजा कहिए, चाहे इवन जो अदर हिंदूज डू द पूजा, क्रिश्चियन होंगे तो दे विल गो टू द चर्च, दे विल ऑल्सो प्रे टू द डाइटी, मुस्लिम होंगे तो दे विल डू अदर काइंड ऑफ वे ऑफ वर्किंग। बट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री ट्रेडिशन इस कुछ भी काम शुरू करेंगे तो शुरुआत कैसे होगी? पितृदेवो भव, ग्राम देवता भव, ओम सो एंड सो, सबके नाम लेंगे, यानी यहाँ तक पेड़ पौधों के नाम लेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी थी ऐसी जो एनवायरनमेंट को बड़ा प्रोटेक्ट करती थी। दिस वाज अनदर वे ऑफ ग्रेटिट्यूड ना। हम भूल गए, और वेस्ट तो खैर जानता ही नहीं था इन बातों को। उन्होंने दूसरे रूप से किया इसमें। उन्होंने क्या कहा, बोलो यार ऐसे तो लोग कोई सोचेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। मदर डे डिक्लेयर कर दिया, फादर्स डे डिक्लेयर किया, मदर इन लॉ डे भी है वहाँ यूएसए में। Like that, there are 27 days they have. They have to be reminded to thank. जब हमारी ट्रेडिशन है हम उसको भूल गए। Anyway, I would like to thank somebody here who we have captured, who has done some good thing in life for this society and have become a change agent. I'm sure you would like it and you will also want to become one of the change agent. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसे करीब 3 लाख लोग पिछले 15 सालों से पानी में आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने के कारण कई बीमारियों से जूझ रहे थे। कई तरह के चर्म रोग और पेट की बीमारियों से ग्रसित इन लोगों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने आर्सेनिक को साफ करने के लिए प्लांट्स तो लगाए, लेकिन न ही कोई इनको देखने वाला आया और न ही कोई सफाई करने वाला। और आर्सेनिक की मात्रा इस पानी में भी ज्यों की त्यों रही। जब सब रास्ते बंद होते नजर आने लगे, तब कुछ गांव वासियों ने ही खुद ही हालात बदलने की ठान ली और कनाडा से आए एक साइंटिस्ट के मार्गदर्शन से बलिया के एक गांव में रहने वाले विनोद शाह ने सीखा पानी को आर्सेनिक फ्री करने का तरीका। 5 किलो बेसिंग में करीब 40-45 छेद होता है, जो हम लोग करते हैं बारीक बारीक, और जो है उसमें 5 किलो कांटी लगभग हमारे बेल्ट में बताया गया है कि कम से कम गंगापुर क्षेत्र में 5 किलो कांटी उसमें डालना पड़ेगा, तभी जो है आर्सेनिक मार सकता है। कांटी को दबाने के लिए कम से कम मैंने 10-20 टुकड़े ईंटे को उसमें हम डाल देते हैं। चाहे कितना भी गंदा पानी उस बेसिन में हम डालते हैं तो वो छान करके आर्सेनिक जो है युक्त पानी दे देते हैं। फिर क्या था, विनोद ने इसी तरीके को बलिया जिले के हर गांव, हर घर तक ले जाना शुरू किया और गांव के लोग भी इनके साथ जुड़ते चले गए। महज एक बाल्टी बालू, ईंट और लोहे के कांटों से घर घर में आर्सेनिक क्लीनिंग प्लांट्स बनते चले गए और स्थिति अब सुधरती नजर आ रही है। हमने जब ये देखा कि कई सालों से जो है कि गंदा पानी पीने से हम लोग बीमार पड़ गए, तो बच्चे भी बीमार पड़ गए। उस कारण से मैंने अपने पास भाइयों से कहा कि मुझे एक आर्सेनिक मुक्त कोई फ़िल्टर बताइए। तो फ़िल्टर हमने लगा लिया और इसका पानी शुद्ध मिलता है। पहले लोग पेट की बीमारियों से, स्किन डिजीज़, तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी और इस पानी के सेवन करने से वो तमाम तरह की जटिल जो बीमारियां थी वो उनसे लोगों को बहुत हद तक निजात मिल चुका है। एक सपना यूं ही हकीकत नहीं बन जाता और ये इन लोगों ने समझ लिया है
कि सपना अगर एक हो तो साथ मिलकर उसको हासिल करना नामुमकिन नहीं। तो अगर आपके पास भी है किसी ऐसे ही सपने को पूरा करने की कहानी तो हमें लिख भेजिए clubdsc@zmedia.slgroup.com पर। It's our endeavor to not only DSC show, but even our media which we manage. We will be wanting to bring more and more people to the light, to the people, to the society who are becoming the change agent without waiting for the government to join.